ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ। ਸਾਡੇ 40 ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਤੇ ਸਦਮੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਭਾਵਨਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਨਿਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਲੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹਿਮ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇ। ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਪ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਰੋਜ਼ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਸੀਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੈਲਫ ਸਟਾਈਲਡ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ-ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਮਾਪ ਵੇਖੇ ਉਹਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਂਗੁਇਸ਼ ਹੈ। ਐਂਗਰ ਵੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਰੇਜ ਵੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਛੱਡੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਸ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਾਇਲਾਗ ਕਿਵੇਂ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨੈਗੋशिएशन किवें ओपन कर सकते हो? आपने कहा कि देश में एक साझा तकलीफ़ है, दुख है, और वह है, और एक साझा गुस्सा पैदा करने की कोशिश की जा रही है तकलीफ़ के साथ। इन दोनों में हमको फ़र्क करना पड़ेगा। पहले तो ये कबूल करना पड़ेगा कि एक साझा तकलीफ़ है, और कोई समुदाय यह न कहे कि ये मेरी तकलीफ़ है और आप इससे बाहर हैं, या मैं ये कहूँ कि आप मेरी तकलीफ़ में शामिल हैं कि नहीं, क्योंकि ये साझा तकलीफ़ है। और किसी से ये सवाल करना कि आप इसमें शामिल हैं कि नहीं, ये इस बात का सबूत है कि आपकी तकलीफ़ असली नहीं है, इसमें कुछ नकलीपन है। और इसलिए ख़ुद अपने दिल में झांकने की ज़रूरत है कि तकलीफ़ है भी कि नहीं। जो 40 लोग मारे गए, 40 से ज़्यादा लोग मारे गए और ज़ख्मी हुए, वे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाक़ों से आते हैं। ज़्यादातर गरीब परिवारों के लोग होंगे। हमारी आपकी तरह की नौकरियां नहीं कर पाए, और इस वजह से वे ऐसी नौकरियां करने को मजबूर हैं। यह बात भी हमें कबूल करनी चाहिए। उनकी एक पहचान है, मेरे देश के जवान हैं, मेरे देश के लिए मारे गए। हाँ, यह सवाल आप हमारे आपके देश के लिए वे मारे गए, लेकिन वे अपने परिवारों के लिए काम कर रहे थे, ख़ुद अपने लिए भी काम कर रहे थे। इस बात को मानने की ज़रूरत है। और उनकी वह तकलीफ़ जब ज़ाहिर होती है, यानी जब वे कहते हैं कि आप हमें अपने देश के पहरुए के रूप में, पहरेदार के रूप में, रक्षक के रूप में तो हमारी जयकार करते हैं, लेकिन आप देखिए कि जब हम घायल हो जाते हैं और नहीं रह जाते उस काम में,
तब हमारे साथ क्या व्यवहार होता है, फ़ौज ने क्या रवैया अख्तियार किया, सरकार ने क्या रवैया अख्तियार किया, या जब वे अपनी सक्रिय ज़िंदगी जो देश के पहरुए के रूप में उन्होंने गुजारी है उसके बाद की ज़िंदगी में उनके लिए क्या हिफाजत है। मैं ये मानता हूँ कि वो जवान भी हैं पर नागरिक भी हैं, किसी के बेटे भी हैं, किसान के बेटे हैं, हाँ, मजदूर के किसान बेटे हैं, के गरीब घरों से सराहते तो हैं। उसको लेकर हमारी फ़िक्र कितनी ज़्यादा है, वह फ़िक्र तकरीबन नहीं है। लेकिन ये दीगर बात है, बात जहाँ आपने शुरू की थी कि यह तकलीफ़ साझा है, इस तकलीफ़ में सारे लोग शामिल हैं। ये मेरी नेशन की सेंस से आ रही है कि ये मेरा राष्ट्र है, ये राष्ट्र के लिए मारे गए। और जब आप तकलीफ़ की साझेदारी करें तब आप एक समुदाय बनते हैं, क्योंकि यह तकलीफ़ की साझेदारी है और यह तकलीफ़ का समुदाय है। तब राष्ट्र की भावना जगती है और यह सकारात्मक भावना है जिसमें हम एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, महसूस करते हैं, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। जब आप गुस्सा पैदा करना चाहते हैं तो वह एक नकारात्मक भावना है, क्योंकि वो किसी को अलग करती है, किसी के खिलाफ होती है। लोग कहेंगे कि आप शायद लोगों के गुस्से को कहीं नहीं समझ रहे हैं। ये बात सच है, जिन लोगों ने उस गुस्से को तामीर किया होगा, कंस्ट्रक्ट किया होगा, जिन्हों ने बनाया ये ਤੁਹਾਨੂੰ लगता होगा कि कोई साजिश है, वो राष्ट्रवाद का एक संकल्प खड़ा करना चाह रहे हैं, इस करके वो एक माहौल बना रहे हैं। पर देश ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਚਿਨ ਤੇ ਖੜੇ ਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਨੂਈ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਇਲੀਟਿਸਟ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕੋਈ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਟੋ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਝ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੈਰੇटिव ओपन ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ बहुत मुश्किल नहीं आ रही कि ये एक रीज़न नहीं कि ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ कोई नहीं सुन रहे? ये मुश्किल है, लेकिन भीड़ तो बात कोई और बात सुन रही है। हाँ, आपने शुरू में यह कहा कि आप सैद्धांतिक बातें क्यों कर रहे हैं, ऐसा कहा जाएगा, व्यावहारिक बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने कहा ना शुरू में कि आप थियोरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल बात करें। लोग कहेंगे, मेरा कहना, हाँ लोग कहेंगे, आपने लोगों के हवाले से ही कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि यह सबसे प्रैक्टिकल है, यह सबसे प्रैक्टिकल है कि आप गुस्सा ना करें, आप बदले की बात ना करें। यह सब न यह प्रैक्टिकल क्यों है और यह व्यावहारिक क्यों है और यह सबसे कम नुकसानदेह क्यों है, आर्थिक तौर पर भी और इंसानी जान के तौर पर भी। क्योंकि हम आखिर किसे व्यावहारिक कहते हैं? व्यावहारिक वह है जिसमें हमें इंसानी जानें ना गंवानी पड़े। जैसे हमारे जवान, व्यावहारिक वो है जिससे ये देश मजबूत है और बना रहे। देश मजबूत कैसे रहेगा जब सारे लोग सुरक्षित हों, लोगों को कभी आशंका न हो कि वो मारे जाएंगे। और इन मारे गए जवानों में से एक की माँ ने ये पूछा कि आखिर हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजते हैं कि वे यूं ही मार डाले जाएं, तो इसलिए पाकिस्तान को जवाब दो। हाँ, लेकिन पाकिस्तान को जवाब देने के पहले यह भी पूछना पड़ेगा और यह हर नागरिक का फ़र्ज़ होना चाहिए कि वह सवाल करे कि जिस वक्त से सरकार ने काम संभाला है उससे लेकर आज 5 साल होने जा रहे हैं, इन 5 वर्षों में कश्मीर में और ऐसे हरकतों में मारे जाने वाले जवानों की तादाद में या उनके दर में 90% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आप लोगों को उड़ी फिल्म दिखा रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, आप उनके लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन जो काम आपको सरकार के तौर पर करना चाहिए और यह आपका फ़र्ज़ है सरकार के तौर पर करना कि आप अपनी सीमाओं को सुरक्षित करें, आप सीमा के पार से आने वाली घुसपैठियों को रोक पाएं, इसमें आप पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। इस सवाल को झेलने की जगह आप दरअसल इसे मोड़कर एक दूसरी तरफ डालना चाहते हैं। ज़रूर पाकिस्तान की ओर से यह हो रहा है, ज़रूर जैश मोहम्मद और इस तरह के समूह सक्रिय हैं, लेकिन फिर आपको सरकार में लाया क्यों गया था? आपका ये फ़र्ज़ था कि आप हिफाजत करें। वो सरकार में आए थे एक नैशनलिज्म का नैरेटिव लैके कि ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है
ਇਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ, ਸਭ ਦੀ ਜੜ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਟੈਲ ਮੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ देश बारे कॉन्सेप्ट वो नहीं है जो साडा है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे आप ये घटना हुई और इस घटना के फ़ौरन बाद जम्मू बंद का ऐलान किया गया और जम्मू में कर्फ्यू है और जम्मू में जो बंद हुआ, अखबारों में जो ख़बरें हैं, मीडिया में जो ख़बरें हैं, उसमें ख़ास समुदाय के लोगों के घरों पर, उनके माल असबाब पर, उनकी गाड़ियों पर हमला हुआ। यह राष्ट्रवादी गुस्सा है जो हमें जम्मू में दिख रहा है और यह राष्ट्रवादी गुस्सा अपने ही राष्ट्र के एक समुदाय को बाहर कर रहा है उस चीज़ के लिए जिसके लिए वो बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है। यानी उसने यह हमला नहीं किया, तो हम कर क्या रहे हैं? इससे आपका सवाल जुड़ा हुआ है। यानी हम दरअसल उस 19 साल के नौजवान के बारे में नहीं पूछ रहे हैं जो हमारे राष्ट्रवादी आख्यान से या जो हमने राष्ट्रवाद का किस्सा बुना, उस किस्से में वह उसको यकीन नहीं हो पाया, उससे मुतासिर नहीं हुआ, वह मुतासिर नहीं हुआ और वह एक दूसरे किस्से से प्रभावित हुआ। 19 साल का लड़का था और इसलिए कि आपका जो राष्ट्रवादी किस्सा था उसमें इस राष्ट्र के जो नुमाइंदे हैं वे नुमाइंदे उस लड़के को नाक रगड़ने को या उसे बेइज्जत करने को इस राष्ट्रवाद का अहम हिस्सा मानते हैं। तो फिर यह दरअसल हमारा राष्ट्रवाद बड़ा नहीं हो रहा है, वसी नहीं हो रहा है, हम इस राष्ट्रवाद को संकुचित कर रहे हैं, इससे लोगों को बाहर कर रहे हैं। ये बनता तो ਜਦੋਂ मैं स्कूल पढ़ता सी, ये बनता तो राष्ट्रवाद स्कूल विच ही जो सानू सिखाया जाता सी कि ये राष्ट्र है। तो ओबवियसली असी जिहड़ा हुण राष्ट्रवाद बनता देख रहे हैं, ये पास्ट तो ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ नहीं खड़ा सी, जो उसका हिस्सा नहीं थे, वो इस राष्ट्र का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? तो उसमें से एक राष्ट्र डिफ़ाइन किया जा रहा है कि आपको लगता है एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस राष्ट्र को डिफ़ाइन कैसे किया जा रहा है और पास्ट से वो जुड़ी हुई डेफिनेशन। जिस भारत में हम अभी रह रहे हैं उस भारत का ख्याल बनना शुरू हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग के दरमियान, और उस जंग में हम ये देखेंगे कि जिसको हम अभी भारत समझ रहे हैं उसके हर हिस्से में एक फ़िक्र की साझेदारी हो रही थी। लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे की ज़ुबानें सीखने की कोशिश कर रहे थे। दक्षिण के लोग हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे थे। हिंदुस्तान का जिसे सबसे बड़ा नेता कहा गया उस वक्त का गांधी, वह नवाखाली के दिनों में भी स्लेट पर बांग्ला लिखने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन उसका कत्ल हुआ उस दिन भी वह स्लेट पर बांग्ला लिखने की कोशिश कर रहा है। वह कह रहा है कि हर व्यक्ति जो हिंदी लिखेगा उसे लाजमी तौर पर अरबी फ़ारसी लिपि की उर्दू लिखना ही सीखना चाहिए, ये वो कह रहा है। मेरे पंजाब के इनकलाबी, बंगाल के इनकलाबियों के साथ मिलकर लड़ रहे थे। तो इस तरह एक साझा राष्ट्र का ख्याल पैदा हुआ, लेकिन इस ख्याल की अपनी बेचैनियाँ थीं और वो बेचैनियाँ दिखलाई पड़ी जब 1947 में ऐसा लगा कि अब यह मुल्क आज़ाद हो जाएगा, अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे। तो हमें पता है कि बहुत सारे इलाके, बहुत सारे सूबे वो इसको लेकर बेचैन थे कि वो अपना वजूद रखेंगे या इस राष्ट्र के किस्से में शामिल होंगे। पंजाब में इसको लेकर बेचैनी थी, इसको लेकर बेचैनी हैदराबाद में थी, इसको लेकर बेचैनी जूनागढ़ में थी, कश्मीर में थी, हर जगह थी। लेकिन इस बात में कामयाबी मिली कि उनसे इन सब से बातचीत करके और एक समझौता सा किया जाए। तो हम जिसे राष्ट्र कहते हैं वो एक तरह का करार है, एक करार जो सब लोगों में एक पैक्ट हो गया, एक एग्रीमेंट है। ये एक एग्रीमेंट है और उस करार में शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि कोई भी एक पहचान सबसे ऊपर नहीं होगी। और ये इतना दिलचस्प है कि जिस गांधी ने जिस हिंदी के लिए पूरे भारत में आंदोलन किया, अभियान किया,
जिस हिंदी को दक्षिण के लोगों ने अपनाया, बाहर के लोगों ने अपनाया, अगर आप संविधान पढ़ें तो वह हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं है। हिंदुस्तान की दूसरी तमाम भाषाओं के साथ सिर्फ एक भाषा है। यह दानिशमंदी थी हमारे देश के उस वक्त के नेताओं की, कि वे न तो किसी एक जुबान को दूसरी जुबान के ऊपर रख रहे हैं, न ये कह रहे हैं कि यह है जो सरपरस्त ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੈ, पंजाबी का है, किसी भी दूसरी ਅੱਜ ਤੇ भाषा ਕੇਵਲ ਇਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਗਾ। हो सकता है, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा जी कि आप संविधान का वह हिस्सा पढ़ लें जो भाषाओं पर है, और आप ये देखेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। मैं इस पे वापस आऊँगा कि ये राष्ट्र बनया किवें, क्योंकि जो अज हो रहा है जम्मू ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਗੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਵੇਂ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है वी आर अफ्रेड ऑफ इवन स्टार्टिंग द टॉक, कन्वर्सेशन? हाँ बिल्कुल, हम लोग डर गए हैं। यह डर इतना ज़्यादा है कि आप देखें कि विपक्ष वह सवाल भी नहीं कर पा रहा है जो सवाल उसे करना चाहिए, और वह कह रहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, उसे और कोई बात नहीं करेंगे इसके बिना। सवाल यह है कि आपको देश की तरफ से, आपको उन लोगों की तरफ से जो मारे गए, आपको सरकार से सवाल करने चाहिए, लेकिन आप डर चुके हैं, क्योंकि अगर सवाल करेंगे तो आपको उनके साथ खड़ा कर दिया जाएगा, राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, और आपको कह दिया जाएगा कि जिन्होंने मारा आप उनके साथ खड़े हैं, या आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी गए थे ना दादरी में, अखलाक के घर गए थे, अखलाक के घर राहुल गांधी गए, अब नहीं जाएंगे, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भी राहुल गांधी गए, और ये बहुत हिम्मत की बात थी, क्योंकि कांग्रेस में भी इस बात को लेकर बहुत घबराहट थी कि अगर राहुल गांधी दिखलाई पड़ेंगे मुसलमानों के साथ खड़े, तो हिंदुओं में उनकी छवि खराब कर दी जाएगी। जो आपने इन बयानों में सुना होगा, सोनिया गांधी ने कहा और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने कहा कि दिक्कत यह है कि हमें मुस्लिम परस्त पार्टी इसलिए क्या जाता है, इस करके ऐसी जाकिया जाफरी ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ नहीं मिलेगी, खुलेआम नहीं मिली, खुलेआम नहीं। कांग्रेस के लोगों ने कहा, कांग्रेस ਦਾ एमएलए को मार देता ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੀਆ नहीं मिल रही। हाँ, वो 17 साल तो हाँ वो सांसद थे, लेकिन आज तक वे खुलेआम नहीं मिली, और खुलेआम इसलिए नहीं मिली कि कहा गया कि अगर आप उनसे सहानुभूति दिखलाई पड़ती, हमदर्दी दिखलाएंगे सार्वजनिक रूप से, तो हिंदू हो सकता है आपसे दूर चले जाएं। तो आप मुसलमानों से हमदर्दी नहीं दिखा सकते, कहीं भी हमदर्दी नहीं दिखा सकते, उनके करीब खुद को नहीं दिखा सकते। और कांग्रेस पूरी तरह से भूल गई है कि वह अगर किसी की पार्टी अभी कही जाती है तो गांधी की पार्टी कही जाती है, और गांधी ने सबसे मुश्किल दौर में, क्योंकि 1947-48 से ज़्यादा मुश्किल दौर क्या रहा होगा गांधी के लिए, जब
जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों से बात करना मुश्किल हो गया है, गांधी के लिए लोगों से बात करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। गांधी ने खुद कहा था कि पहले मैं बोलता था, पूरा मुल्क मेरे पीछे होता था, अब मैं बोलता हूँ मेरी कोई सुनता नहीं है। इससे ज़्यादा अब होते तो कांग्रेस से निकाल दिए जाते, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी नहीं। हाँ, तो गांधी लाचार थे, लेकिन उस वक्त भी गांधी और उनके दोस्त नेहरू और बाकी दोस्त इस बात को लेकर अडिक्ट थे कि वे इसकी इजाज़त नहीं दे सकते कि हिंदू और सिख जो पिट कर लुट कर पाकिस्तान से दिल्ली पहुंचे हैं, वे हिंदू और सिख मुसलमानों के घरों पर कब्जा कर लें। उस वक्त ये कहा जा सकता था कि ये बहुत जायज़ है, क्योंकि हिंदू क्योंकि गांधी ने क्या कहा, गांधी ने शरणार्थी शिविरों में जाकर, क्योंकि वहाँ हिंदू सिख भरे हुए थे। ਗਾਂਧੀ ਹੈਡ ਅਦਰ ਪਲਾਨਸ। ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇਬਰਸ ਹੁੰਦੇ, कोई मोहम्मद अखलाक मेरी गली दे विच रहंदा हुंदा। बिल्कुल। तो गांधी का यह कहना था कि तुमने इस राष्ट्र के नाम पर अपने पड़ोस को उजाड़ दिया और ऐसा करके तुमने अपनी इंसानियत को ख़त्म कर दिया। गांधी ने यही बात कही थी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम पड़ोस को कैसे उजाड़ सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਟਫੈਸਟ ਆਫ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗਾਂਧੀ ਕੁਡ ਸੇ ਦੈਟ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੀਫ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੌ ਬਹਿਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ NSA ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੌ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? बिल्कुल। 1947 की तरह ही, 46 की तरह ही, ये जो मुसलमान सवाल है या मुस्लिम क्वेश्चन है, ये मुस्लिम क्वेश्चन वापस लौट आया है। और उस वक्त जो एक इच्छा थी हिंदुस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान को मुसलमानों से आज़ाद कर दिया जाए, मुसलमानों से पाक कर दिया जाए, मुसलमान या वह इच्छा आज है कि आप, मैं सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ता हूँ कि एक एक मुसलमान को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। नारा सेम है, गली में वही नारा, वही गली है। हाँ, उसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। तो पाकिस्तान एक कोड है जो दरअसल मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रोहिंग्या एक कोड है जो मुसलमानों के लिए, मतलब तो बांग्लादेशी घुसपैठिए मींस मुसलमान, एक कोड वर्ड है जिसको लोग डिकोड करते हैं मुसलमान। आप बांग्लादेशी बोलते हैं, मुसलमान में वो डिकोड हो जाता है। तो इस वक्त ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हिम्मत के साथ ये कह सकें कि तुम अपने रास्ते से भटक रहे हो और वह रास्ता तुमने सबसे मुश्किल वक्त में चुना था। 1947 में तुमने वह रास्ता चुना था और वो एक बहुत हिम्मत भरा, अचरज भरा फैसला था जिसको दुनिया ने देखा कि ये कैसा प्रयोग होने वाला है आगे चलकर। उस प्रयोग में आप सफल होंगे कि नहीं, लेकिन प्रयोग में आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप उस प्रयोग में खुद को लगाएं और उस रास्ते पर आगे बढ़ें। मुझे बताइए, आप पंजाब में बैठे हैं, पंजाब में सिख तो 1947 के इस दौर से गुजरे, पंजाबी गुजरे, पंजाब गुजरा। 1984 में एक सिख क्वेश्चन खड़ा हुआ जिसमें से सिख गुजरे। ਹੁਣੇ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਮੀਨਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸੇ ਹੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੇਨੋਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੀ 1993 ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਡਿਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਪ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿ
ਕੰਧਾਮਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 11 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ 2008 ਦਾ ਸੀ, 2008 2007 ਹਾਂ। ਸੋ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੰਧਾਮਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। So what gives you hope ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? One minority is not talking about another minority. Actually ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁਸਲमान फेस कर रहे हैं, तो आवाज़ नहीं है। हाँ, ये एक चुनौती है सिखों के सामने भी कि और यह एक तरह का स्वार्थ है। उससे 1984 का जुल्म कम नहीं होता, लेकिन यह स्वार्थ है कि आप सिर्फ अपने ऊपर के जुल्म के बारे में सोचते हैं। आप आप खुद अल्पसंख्यक हैं, वह दावा आपका है, लेकिन आप दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में भी नहीं सोचते। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर वह साझेदारी पैदा नहीं होती जिसे दर्द की साझेदारी कहते हैं, और आप बहुसंख्यकवाद के खिलाफ नहीं लड़ते। दरअसल आप इसको यह कह सकते हैं कि ये उलट कर या इन्वर्टेड मेजॉरिटेरियनिज्म ही है, क्योंकि आप अपने दुख को सबसे बड़ा मानते हैं और आप बाकियों के दुखों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो यह नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकली या मनोवैज्ञानिक तौर पर यह इन्वर्टेड मेजॉरिटेरियनिज्म है। और इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपका तो इंसाफ होना चाहिए, लेकिन अगर 2002 का इंसाफ नहीं हो रहा है या बाकियों का इंसाफ नहीं हो रहा है, और यह चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि सिखों की पार्टी कही जाने वाली शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करते वक्त उसको कोई एतराज़ नहीं होता है। वो तो पीडीपी को नहीं एतराज़ है, बीजेपी के साथ पीडीपी को भी नहीं एतराज़ था। बहुत से लोग पीडीपी और बीजेपी के समझौते में बहुत कुछ पॉजिटिव भी देख रहे थे कि ये पार्टीज़ एक दूसरे ਨੂੰ पुश ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਸ ਐਨਵੈਲਪ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਕ ਕੰਟੈਸਟਿਡ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ फर्क आना चाहिए सी उस मेजोरिटेरियन पार्टी की सोच के विच वो दिखाई नहीं देता। सो मैं यही थोड़ा रोक के कहना चाहूँगा, समझौते के पीछे का ख्याल बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ। ख्याल यह है, जैसा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने भी कहा, महबूबा मुफ्ती ने कहा, उनके अब्बा ने कहा कि हमें ऐसा लगा कि इसकी वजह से हिंदुओं और कश्मीर घाटी और जम्मू में जो दूरी है वो कम होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ वे भूल गए, और यह बात शिरोमणि अकाली दल भी भूल गया, या उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, वो या बहुजन समाज पार्टी भी भूली, या मैं कह रहा हूँ जयप्रकाश नारायण भी भूले और लोहिया भी भूल गए। वो यह कि आप सरबोरा न माने, वो तो रामचंद्र गुहा भी भूल जाते हैं, परंतु हाँ, लेकिन अगर आप ये भूल जाते हैं कि आप सबके साथ समझौता कर सकते हैं। यह देखा गया हिंदुस्तान में कि हर समझौते के बाद उसकी ताकत बढ़ी। लोहिया ने समझौता किया, जनसंघ की ताकत बढ़ी। संविध सरकारें बनी, जनसंघ की ताकत बढ़ी, बाकियों की बीएसपी ने समझौता किया, बहुजन समाज पार्टी ने समझौता किया, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब सतीश मिश्रा के बिना चलता नहीं है। नीतीश कुमार ने समझौता किया, भारतीय जनता पार्टी राइट का बिहार में बढ़ गया। तो आप रेडिकल ईविल के साथ जब समझौता करेंगे, और ये इस बात को अपनी एक किताब ऑन कॉम्प्रोमाइज एंड रॉटन कॉम्प्रोमाइज में अविशाल मार्गरेट ने लिखा है कि सवाल समझौते के भीतर क्या है उसका भी है, लेकिन समझौता किससे कर रहे हैं इसका भी है। तो आपकी मंशा अमन की हो सकती है, लेकिन समझौता आप रेडिकल लेवल से कर रहे हैं। समझौता करने के लिए तो हमें सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, वो मतलब कह रही रहे हैं, इनकरेज कर ही रहे हैं कि भाई कर सकते हैं आप। अगर मंदिर वाला मसला, क्योंकि ये तो एक लटकता मसला है, वो मुस्लिम क्वेश्चन का वो हिस्सा है और वो बड़ा हिस्सा है, उसे तो ही बहुत कुछ आ रहा है, इंज जाप रहा है जिवें चंगी गल ये होएगी। और मैं आई हैव सीन डिसेंट पीपल ये गल करते हैं, चंगी गल ये होगी कि यार मुसलमान ही मान जान, उत्थे राम जन्म भूमि ते एक भव्य मंदिर बन जाए,
ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮਨਾ ਲੈਣ, ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਣ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਵੋ। सो व्हाट विल बी दैट, कंप्रोमाइज और रोटन कंप्रोमाइज, क्या हाँ आप उसको रखें? अगर मैं समझौता के सड़या होया समझौता, हाँ, अविषय के की परिभाषा को मान लूं, जिसको मैं मानता हूं और उसको मैं खास मैं दस दें कि अविशल, मैं अपने ऑडियंस ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਵਿਸ਼ਲ ਮਾਰਗਰੇਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਹੈਬਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਬਾਰੇ, ਬਿਟਰੇਅਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल, समाज प्रिंसटन ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। अच्छा समाज कैसे बनता है, एथिक्स ऑफ इसको मेमोरी लेकर भी जी, एथिक्स ऑफ मेमोरी डिसेंट सोसाइटी जी, ये उनकी किताब है। हाँ, डिसेंट सोसाइटी। तो अगर मैं उनकी परिभाषा को मान लूं, जो कि मैं मानता हूं, तो मेरा कहना यह है कि समझौते ज़रूर किए जाने चाहिए, लेकिन अविषय के मुताबिक सड़ा हुआ समझौता नहीं करना चाहिए। और सड़ा हुआ समझौता किसे कहेंगे? दो तरह से उसको नाप सकते हैं। अविषय का कहना है कि समझौता जब दो पक्षों के बीच होता है तो उसमें एक पक्ष मजबूत, एक पक्ष कमज़ोर होता है। और एक अच्छा समझौता वो है जिसमें मजबूत पक्ष कुछ छूट देता है, कमजोर मैं ताकतवर हूं पर मैं तुमको एडजस्ट कर रहा हूं, अकोमोडेट कर रहा हूं। और सबसे पहली बात समझौते में यह है कि मैं आपको रिकॉग्नाइज करता हूं, मैं आपको पहचानता हूं, मैं आपको बैठने लायक मानता हूं। और ये सबसे पहली चीज़ है जो मांगते हैं। इसलिए नागा समझौता हुआ या मिजो समझौता, मिजोरम के साथ हिंदुस्तान का समझौता, यानी हिंदुस्तान की सरकार उनको अपनी साथ मेज पर बैठने लायक मानती है। सबसे पहली बात तो यही है। तो मैं आपको वजन दे रहा हूँ। दूसरे कि मैं आपको छूट दे रहा हूँ, मैं आपकी कुछ बातों को मानता हूँ। तो मैं मजबूत हूँ, मैं राज्य हूँ, उसके बावजूद मैं मान रहा हूँ। मैं चाहूँ तो आपसे अनंत काल तक लड़ते रह सकता हूँ, फिर भी मैं मान रहा हूँ। तो जिस समझौते में आप छूट नहीं देते कमजोर पक्ष को, एक दूसरा कि अगर समझौते के बाद जो कमजोर पक्ष है निशाने पर रहा है, उसकी बेइज्जती, जिल्लत और तकलीफ बढ़ जाती है, कम नहीं होती है, तो फिर वो समझौता सड़ा हुआ समझौता है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि मुसलमानों की तरफ से, यानी बिना मुसलमानों से पूछे उच्चतम न्यायालय ने उसी जगह पर कार सेवा करने की इजाजत दी। यह एक तरह का समझौता था। हाँ, तो वो बहुत उन्होंने मान लिया, बहुत समय से चला रहा है। केंद्र अचानक मूर्तियों का प्रकट होना, अचानक उनको फिर ना गायब करना, 1949 से ये सब चलता है। तो ये सब नेशन बिल्डिंग अक्सर सड़े हुए ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਲੱਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਪਲੇ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝ ਤਾਮੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਪਨਪ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬੰਦਾ ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੈਟਰਲ ਡੈਮੇਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਰ ਵੀ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਅ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਮੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ। बिल्कुल, ये सब बहुत ख़तरनाक है। और
आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एक चीज़ है, लेकिन आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट फिर भी, जिसको आप सिविल हुकूमत कहते हैं, उस सिविल हुकूमत को किनारे नहीं कर रही थी। सिविल हुकूमत फौज को खुली छूट दे रही थी, जो अपने आप में बुरी बात थी। इसलिए हम सारे लोग ये कह रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि फौज को ऐसे भी खुली छूट है। खुली छूट। और हम प्राइम ये देख मिनिस्टर रहे कह हैं रहे कि हैं हमारा जो फौज का सबसे बड़ा ऑफिसर है, वो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी हो रही हैं। वो देश को संबोधित कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में राय दे रहे हैं, दूसरी चीज़ों के बारे में राय दे रहे हैं। मेजर गोगोई डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसने आदमी को बांधा, वही मीडिया के थ्रू पूरे देश को मुखातिब था। और मेजर गोगोई कर रहे हैं। ये बिल्कुल नई चीज़ है और हम फ़ख्र महसूस करते थे कि हम पाकिस्तान नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान पे फौज की हुकूमत है। हाँ, ये लगता सी कि मैं देखा होया, पर ये पाकिस्तान च देखा होया, उत्थे डर फौज आ जाएगी। हाँ, कि हुण असीं दस रहे हैं पाकिस्तान नूं फौज आ जाएगी, या फौज तय करेगी तब होगा। हाँ, जैसे अभी आप क्या कह रहे हैं, अभी हम ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ कुछ हो सकता, क्योंकि वहाँ फौज तय करती है। वहाँ का की जो सिविल हुकूमत है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो तो जनरल हेडक्वार्टर से तय होता है। हाँ, तो अभी जो हम भारत में कर रहे हैं, उसमें हम धीरे धीरे सिविल हुकूमत के दायरे को सिकोड़कर और फौज के दायरे को बड़ा कर रहे हैं। इस तरह हम खुद जमहूरियत को या अपनी ताकत को हवाले कर रहे हैं फौज के। हम ये कह रहे हैं कि आपको, प्रधानमंत्री के इस बयान का कोई मतलब नहीं है कि हमने फौज को खुली छूट दे दी है, वह जब जैसे चाहे करे। ये फौज तय नहीं कर सकती। आर्मी ते सरकार विच भी नवा रिश्ता बन रहा, नागरिक ते फौज विच नवा हाँ, रिश्ता लेकिन बन मैं रहा। यह कह रहा हूँ कि इसमें एक और बात है, और उसको कहा जाना चाहिए। उसको कहने में बहुत लोग गुरेज करेंगे, मैं यहाँ कहने की कोशिश करूँगा। वो यह है कि जो हो रहा है वह फौजी जहनियत और हिंदू बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवाद का एक मेल है। फौज को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी नेशनलिस्ट, फौज भी नेशनलिस्ट। हाँ, क्योंकि आज तक हिंदुस्तान की फौज को माना गया था कि वह धर्मनिरपेक्ष है। जब फसादात भी होते थे, मुसलमानों पर हमले, यहाँ तक कि सिखों पर भी हमले, तो एक मांग होती थी फौज को लगाया जाए, फौज लाओ, पुलिस हटाओ, फौज लाओ। अब शायद हिंदुस्तान की ऐसी आबादियाँ ये नहीं कह पाएंगी। हाशिमपुरा में तो लोग नहीं कहेंगे, हाशिमपुरा एक उदाहरण है उसका। उसको लोगों ने कहा अपवाद है। और सज्जन कुमार तो बाद जजमेंट आई है। हाँ, तो पंजाब जो चर्चा च नहीं आई है, बिल्कुल नहीं चर्चा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि खतरनाक ये है कि फौज के एक बड़े हिस्से में इस बात को लेकर इत्तेफाक है कि यह जो विचारधारा है, जो हिंदू बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा है, इससे उनको एतराज़ नहीं है और इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। सुनाई दे रहा बार बार पाकिस्तान तो जिवें सुनाई दिंदा जो इमरान खान की हुकूमत आई कि जी ये वाली सिविल हुकूमत ते फौज अलाइंड है। तुसी ये कह रहे हो कि मैं दूसरी बात भी जोड़ना चाहूँगा। श्योर। आप वो सवाल ज़रूर करेंगे कि अभी एक और फिक्रमंद बात दिख रही है, वो ये है कि हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी और हिंदुस्तान की पुलिस, जिसके बारे में पहले भी पुलिस अफसरान ने ही कहा है कि हिंदुस्तान की पुलिस का पूर्वाग्रह अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। हाँ, वो तो प्रकाश सिंह लेकिन कहते हैं। इन 5 सालों में यह दिखलाई पड़ रहा है कि हिंदुस्तान का जो सिविल प्रशासन है, उस सिविल प्रशासन में और पुलिस में जो ये पहले से दबा हुआ पूर्वाग्रह था अल्पसंख्यकों के खिलाफ, अब वह सक्रिय हो गया और बाहर आ गया। और यह भी बहुत चिंता की मुझे इस बात से डर है कि यहाँ बैठे हुए भी तुसी कह रहे हो कि मैं गल कहन दी कोशिश करदा, सीधे गल करन तो इस तरह ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਓਰਲੀ ਇਹਨਾਂ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ तमाम ਮਾਸੂਮ बेगुनाहां दे कतलों का जिक्र तो गुरेज किया गया। समझा जा रहा है कि माहौल इस किस्म का नहीं है। और इधर गल हो रही है कि जी लैसन सिखा दो तो पाकिस्तान को लैसन सिखा दो, तुसी कह रहे हो कि ये तो कोड वर्ड है मुस्लिम ਲਈ है। इस सारे दे विच जिहड़ा बयानिया है वो तो नफरत का बयानिया जे पोलिटिकली इंसेंटिवाइज्ड है। बिल्कुल, जे उस दे विचों फ़ायदा है
ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 2019 ਦਾ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਥੋੜੇ ਸੌਫਟਲੀ ਕਮਿਊਨਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਰਡ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੂਮਡ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਰਡ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌਫਟ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। अपूर्वानंद जी वाला तो कोई सेकुलरिज्म नहीं मिलेगा। हाँ, जिसको आप बिना मिलावट का सेक्युलरिज्म कह सकते हैं। वो तो जिससे हम क्रोनोलॉजी आजकल पढ़ते हैं ना हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स की, पोस्ट इंडिपेंडेंस की, रामचंद्र गुहा से, उसमें से भी लिबरलिज्म जो है वो नपा तुला सा ही मिलता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि हमारा उस पर यकीन नहीं है और दूसरे कि हमने उसका अभ्यास नहीं किया है। आपको उसका लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। अम्बेडकर ने तो यही कहा था ना कि आपने एक ऐसी चीज़ बना ली है जो इनकलाबी है, लेकिन एक ऐसे समाज में आप लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका यकीन भेदभाव में है, जिसका यकीन छुआछूत में है, जिसका यकीन लोगों को अपने घर से बाहर रखने में है। उसमें आप बराबरी का ख्याल लेकर आ गए हैं। तो फिर कतल कलामी के लिए माफ़ी, फिर आप क्या ये कह रहे हैं कि अगर कोई रेजिस्टेंस आएगा तो वो एंटी ब्राह्मणिकल किसी फोर्स से आएगा और वो लड़ाई वही बड़ी लड़नी पड़ेगी? चैलेंज हिंदुत्व को वहीं से आएगा, कास्ट के प्रति चैलेंज से आएगा। तो क्या आप आदिवासी, दलित, बहुजन्स में से ये चैलेंज आता देखते हैं? नहीं। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये आसान रास्ता जो हमने सोचा था संसदीय राजनीति में कि हमें गठजोड़ बनाएंगे, जो ये सब लोग मिल जाएंगे अच्छे आदिवासी, और लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि यह विचारधारा तो हर किसी के भीतर है ना। जब आप ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं तो ब्राह्मणवादी विचारधारा सिर्फ उच्च जातियों में नहीं रहती है जी, वो हर किसी में होती है। तो सिख धर्म, जिसको बराबरी का धर्म कहा गया और उदारता का धर्म कहा गया, उसकी सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में जब आप पहुंचते हैं और गांव में आप देखते हैं कि 2 गुरुद्वारे हैं और एक गुरुद्वारे में दूसरे को जाने की इजाज़त नहीं है या उसे अपना अलग गुरुद्वारा बनाना पड़ा है, तब हमारी समझ में आता है कि मजहब अलग बना लेने से फ़ायदा नहीं है। आपने मजहब बनाया लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में जो ख्याल था उस ख्याल को आपने लिया नहीं। आपने अपने समाजी स्थिति को बनाए रखने की पूरी कोशिश की जो कि ऊंच नीच पर आधारित है, जो कि छुआछूत पर है, जो दूसरों को बाहर रखने पर है। तो आपको लगता है एक सिख भाईचारा काम कर रहा है, वो अक्सर ही सिखिज्म के प्रिंसिपल्स से हटके काम हो रहा है? बिल्कुल, उनसे जुड़ के नहीं हो रहा। बिल्कुल, वरना 2-3 तरह के गुरुद्वारे क्यों हैं आपके? वरना आप पंजाब में एक बड़ी आबादी जो कि दलितों की है, उस आबादी से हमदर्दी कहाँ है? बाकी इसकी वो सिख कहे जाएंगे या नहीं कहे जाएंगे, यह एक सवाल है। तो मैं यह कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वह अंबेडकर की उस चेतावनी और गांधी की चेतावनी और नेहरू की चेतावनी से बिल्कुल अपने आप को काट लेने की वजह से हुआ। नेहरू ने अपने आखिरी मीटिंग उनकी जो सेक्रेटरीज़ के साथ हुई थी, जिसका जिक्र उनके एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट ने अपने संस्मरण में किया, गुणदेविया ने, उन्होंने कहा कि नेहरू से लोगों ने पूछा कि ख़तरा क्या कम्युनिस्ट हैं, और नेहरू ने कहा कि मैं बता देना चाहता हूँ ख़तरा कम्युनिस्ट नहीं है, ख़तरा भारत में हिंदू कम्युनलिज्म होगा। नेहरू का मतलब ये था मेजॉरिटेरियनिज्म होगा। आजकल राहुल गांधी को ये वाला कोट नहीं याद आता है, नहीं याद है, या वो उनको अगर पता भी हो तो या उनको ये याद है कि ऐसी बात नहीं कहनी है। जैसे वो ये कहना भूल जाते हैं कि गांधी ये कहते थे कि बंदूक की नोक पे तुम मुझे वंदे मातरम के लिए खड़े होने को बोलोगे तो मैं नहीं खड़ा हूँगा। बिल्कुल, बंदूक की नोक पे तो उन्होंने कहा मैं हे राम भी नहीं बोलूँगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं मर जाना पसंद करूँगा, मैं लेकिन बंदूक की नोक पर मैं ये बोलना पसंद नहीं करूँगा, मुझे ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं करवा सकते। तो अगर इस सिद्धांत को हम बार बार इसका अभ्यास नहीं, आपने शुरू में स्कूल की बात की थी जी, जो रह गई। दरअसल हमने अपनी स्कूली किताबें, स्कूलों का पूरा ढांचा, उच्च शिक्षा में इस साझा जहनियत को बनाने के जो बुनियादी तत्व हो सकते थे उनके बारे में जमकर कभी बात ही नहीं की। हमने आसान रास्ता अपना लिया, महापुरुषों के किस्से, वीरता के किस्से, राष्ट्रवाद के किस्से, तो हमने उस मुश्किल सफ़र का जिक्र ही नहीं किया जो मुश्किल सफ़र इन सब लोगों ने किया था। डू यू सी होप हेयर कि ये बयानियाँ बदलेगा?
हाँ, मैं ये नहीं मानता कि इंसानी समाज कभी भी अपरिवर्तनीय रहता है, उसको बदलना पड़ता है अगर उसको इंसान रहना है तो। अगर वह जंग खत्म हो जाएगी, मैं जंग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वह संघर्ष खत्म हो जाएगा, जो संघर्ष इंसानियत का संघर्ष है, तो ज़रूर हम बहुत लंबे वक्फे के लिए एक इस तरह की गैर इंसानी वरना निज़ाम में चले पाकिस्तान सा जाएंगे। बन ही रहे हैं, इजराइल सा बन जाएंगे। हमारी तबीयत इजराइल बनने की है, हमारी तबीयत इजराइल बनने की है, और इससे सावधान रहने की हम लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि किसी वक्त हम एकदम नए मुल्क थे, लेकिन पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रही थी। यानी पूरी दुनिया में कोई समस्या होती थी, हिंदुस्तान मध्यस्थता करने के लिए बुलाया जाता था। अब हमारी हैसियत क्या हो गई है, क्योंकि हम एक तरह की प्रतियोगिता में हैं, हम अब इजराइल से राय लेते हैं कैसा नेशनलिस्ट बन। हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप चलता हुआ ज़मान में कह सकते हैं कि आखिर वो कल का खड़ा हुआ हमारे साथ ही खड़ा हुआ था, हाँ, बंदा, लेकिन अब हम उसे गुरु बना रहे हैं। और हम कहते तो हैं कि हम विश्व गुरु थे, लेकिन हमारा वो रुतबा छिन गया। और क्यों छिन गया? क्योंकि हम दूसरों की तरह ही, अमेरिका की तरह, इजराइल की तरह, पाकिस्तान की तरह के राष्ट्रवादी बनने की कोशिश में जुट गए हैं, और हम ओछेपन पर उतर आए हैं। हमने अपना बड़प्पन खो दिया है, हमने महत्वाकांक्षा छोड़ दी है। मेरा कहना है कि हमें इस महत्वाकांक्षा को अपनाना चाहिए। टफ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ तमाम ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ? ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।